It is your effort because you are constantly pestering children, isn't it? पढ़ाई करो, regular पढ़ाई करो, mobile पर देखो, all that. But before I give out the message, I just want you to acknowledge the effort of my children in class 10 and 12 results. Some of you are part of it because my children are in class 10. So I want to start with class 10 and I want to share that Samrita Roy, who has got 98.4%, highest in the school. Following closely to her is Bhavya Sharma, Prakhar Anand and Richard Chetri. They are all three of them got 97% and Yaman Jha and Kashi Goyal have scored 96.2% both of them. In fact, I am also proud of children who have got 100 marks in different subjects. Like for example, Prakhar has got one single has got probably because he's done so well in CUT, he will get a place in SRCC because he's been pursuing the Wisdom Honors software, so he will be getting a seat. Manpreet has been our school topper in humanities. She got 96.8%. So we are very proud of everyone's achievement and more results will follow and we will share with you everyone where each of our child is going to be placed in. But two children, and I always say that I am very proud of each and every child that I have in my school, but these two girls who are here, yes, they are testimony to that how much of hard work pays off eventually. Pari Gupta, can you stand up so that everyone has? She is a part of our last year batch, and I think every ladies and gentlemen got to clap for her because she can read. She's done so well in university. She got full marks in biology, and she's going to get a very good place for the only course. First place, the orientation I'm going on. Very good. Then my last year's head girl, I'm always proud of Priya so much. Priya, she scored 100 in English in board exam. And she has cleared gift exam. And she can now become whatever she wanted to do in her life. So we wish every child who has passed from here, I'm sure they will do very well. But one thing I always tell them, no matter how well you do, but you have to be good human being. Now during holidays, there are a lot of infrastructure changes. I think probably you can make out where you are sitting. There is a big fan which is there. There is a basketball court has been renovated. मुझे अपने स्कूल डेज से याद है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं क्लास 1 में और क्योंकि जरूर लाइटर पूरा प्रोजेक्ट हूँ मेरे 10th में 12th में मार्क्स परसेंटेज उतने थे 40% मार्क्स 98% 100% मार्क्स हमारे समय शायद किसी सब्जेक्ट में एक डिस्टिंक्शन आ गया तो ये बहुत बड़ी बात है 65%, 70%, 60% बहुत बड़ा क्योंकि किसी मामले में किसी सब्जेक्ट पर अगर डिस्टिंक्शन दिया तो पहले हम अपने परसेंटेज बाद में बता देते हैं पहले कहते थे मुझे डिस्टिंक्शन मिला है फिर अपना परसेंटेज बहुत समय में लगे बच्चे शायद हम लोग से ज़्यादा पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं तभी इतना मार्क्स लेके आते हैं और बच्चों को देखकर मैं जिस स्कूल में पढ़ा उसमें मेरी मदर टीचर और वो ऐसे केंद्रीय विद्यालय में केपी में स्टूडेंट था केपी में मेरी मदर टीचर थी ऐसे प्रिंसिपल वो रिटायर थे मैं बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट था क्योंकि मेरी शिकायत को नहीं किया था बहुत समय नहीं हुआ ये कहना है कि बच्चों की जगह से इस जगह तक आने में दो चार चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन फोकस
अगर आप अपने काम में स्टूडेंट लाइफ में अगर आप हार्डवर्क फोकस है स्टडीज में अगर अचीव करें जब अपने करियर में आएंगे डिटर्मिनेशन और अपने कार्य के प्रति लगन ये आपको सक्सेस मिला है। That's it. The key of success is hard work. जाता है। यह दिन न केवल विद्यार्थियों की प्रतिभा का उत्सव है, बल्कि उनके संघर्ष, समर्पण और निरंतर प्रयासों की सुंदर परिणति है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कक्षा 8 के विद्यार्थी जिन्होंने सत्र 2024 आज इस स्कूल में मेधावी छात्रों को स्कॉलर बैच सम्मानित करने की कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ और मैं कहना चाहूँगा कि सपनों की ऊंचाई को छूने का समय है। हर रास्ते में अपने हौसले का राज है। जो मेहनत से सच्ची राह पर चलता है वही पाता है मंजिल, वही सच्चा विजेता है। सभी पेरेंट्स, प्रिंसिपल मैम और स्टूडेंट्स, आज का अवसर जैसे मैंने बताया मेरी प्रसन्नता का है। जिन जिन बच्चों को स्कॉलर बैच मिला है वो उनके डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन का द्योतक है। जिन बच्चों को नहीं मिला है उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने समय को अच्छे प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से यूज करें और जिस सब्जेक्ट में कमजोरी महसूस कर रहे हैं उसको बार बार प्रयास करके अच्छे से सीखें। और बहुत समय न लेते हुए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जिंदगी में कुछ भी पॉसिबल नहीं है अगर आपने दिल से चाह लिया है। अगर आप डिवोटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, यू आर फॉलोइंग द करेक्ट टाइम एंड देन यू विल अचीव सक्सेस। डेफिनेटली यू विल अचीव द सक्सेस। जब तक आपको अपने मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो अपने प्रयास को और आकलन करें, आप बनी रहिए, उसको सुधारें और सफलता हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं। आज का ये गौरवपूर्ण दिवस सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के अथक प्रयासों की अनुपम परिणति है। आदरणीय अभिभावक के सहयोग, विश्वास और प्रोत्साहन के बिना यह उपलब्धि संभव नहीं होती। आपने जिस विश्वास से अपने बच्चों का हाथ हमारे हाथ में दिया
दिया वही आज सफलता के इस मुकाम तक उन्हें लेकर आया है। जहाँ विश्वास होता है वही विकास होता है। और मैं उन सभी शिक्षकों कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मंच के पीछे रहकर भी इस आयोजन को सफल बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यह कार्य बिना प्रधानाचार्य जी के नेतृत्व के सफल हो ही नहीं सकता। यह सम्मान एक पड़ाव है, अगला कदम